Today we will study our next topic, that is vector. This is the fourth chapter. This is the chapter number 4 of class 11, and it can also be divided as motion in two dimension. Motion in two dimension. So motion in two dimension, or we can say motion in a plane. So we need to study the vectors. So what do you mean by vector quantity? So we have studied already what do you mean by the quantity. Quantity are of two types. One is your scalar, another one is your vector. So those having magnitude only known as scalar quantity, magnitude plus direction known as vector quantity. So what does vector quantity signify? So directed magnitude known as vector. So what do you mean by directed magnitude? Means suppose this is a way. Suppose A is a magnitude and this represents the vector. So this is a symbol of vector. So this represents your direction and this represents your magnitude. More appropriately we can say vector is a combination of locally. In a local language we can say vector is a combination of, you should have an idea of trigonometry and Pythagoras theorem. More very basic things I am talking about. It is very easy. If you having the idea of these two topics, trigonometry and Pythagoras, you can easily able to understand what they mean by vector. But you cannot write such things in your examination. So what do you mean by vector? Directed magnitude known as vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाला पोर्शन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड. तो हमको इसके अंदर के टॉपिक्स को पढ़ना है, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, क्या क्या चीजें होती है वेक्टर में. तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर द वेक्टर. कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कब होगी? सो इट शुड फॉलो पैरेललोग्राम law of vector addition. What is the parallelogram law of vector addition? So that is, suppose there are two vectors, one is vector A and another one is vector B. So suppose this is a vector B A, this is a vector B. So their resultant, suppose there is a resultant R there, this is a resultant R. So this resultant equal to A square plus B square प्लस 2ab cos थीटा. ये कैसे आता है, ये प्रूफ अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे. रिजल्टेंट की वैल्यू थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a and b. थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a and b. You just listen, we will study later on how this proof we will derive. Second point है, it should follow commutative law or distributive law. What does this law signify? Suppose this is a vector A, and this is a vector B. So this vector can be shifted over here. So this is the resultant. So A and B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम में R क्या दे देते थे? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल देते थे. लेकिन हम लोग वेक्टर में क्या, जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट यहाँ निकाल देते हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर बी हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, या फिर वेक्टर ए को हम चाहे तो ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. तो हम लोगों का कम्यूटेटिव लॉ क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए. माने सेम 0 डिग्री पे शिफ्ट हो सकते हैं. ये चीज यहाँ जा सकता है कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट यहाँ आ सकता है. इसे कहते हैं कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जानना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर. जस्ट नाउ वी आर स्टडीइंग ओनली द टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड how we will going to deal with this topic. So this is the first time you are studying all these topics, so don't be worried about this topic. You just listen and calm down and just patiently you just listen the topic, and at the end you will find that you having a perfect knowledge of this topic. So types of vector.
So first one is your like vector. So like vector, suppose this is a vector A and this is a vector B, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो इन्हें क्या बोलेंगे लाइक वेक्टर। ठीक। सेकंड है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर क्या होता है, सपोज दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी, इनके बीच में थीटा कितना है 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा अनलाइक वेक्टर। थर्ड है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर और भी कैन से नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, इसको बोलते हैं अपन लोग आई कैप। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप, इसको कहते हैं के कैप। इसे कैप कहते हैं, सिंबल को क्या बोलते हैं कैप। अब ये आप समझिए, अब यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या है। तो कैप देखिए, जैसे अपन लोगों ने 2D पढ़ा, आपने 2D में पढ़ा, अपन ने कहा 3,4 अपन को सर्कुलेट करना, तो अपन सीधी सी बात है अपन समझ गए 3 यूनिट इधर जाएंगे 4 यूनिट इधर जाएंगे, यहाँ पे 3,4 हो गया। लेकिन वेक्टर में ऐसे नहीं लिखा जाता। वेक्टर में 3 अपन ने ले लिया एक्सिस, एक हो गई एक्स एक्सिस, एक हो गई वाई एक्सिस, एक हो गई जेड एक्सिस। तो 3,4 ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखेंगे एक्सिस। जैसे कोई वैल्यू है तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3,4, तो एक्स एक्सिस में 3 जाना है, वाई एक्सिस में 4, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 यूनिट जाना है हमें एक्स एक्सिस में, और जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है 4 यूनिट जाना है हमें जे एक्सिस में। तो 3,4 कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे। मान लो कोऑर्डिनेट है हमारा 3,4,5, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 का 5 कहाँ जाना है जेड एक्सिस में, तो 5 की कैप। तो हमारे वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 आई कैप 4 जे कैप 5 की कैप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 यूनिट एक्स एक्सिस में, 4 यूनिट वाई एक्सिस में, और 5 यूनिट जेड एक्सिस में। मान लो जेड एक्सिस हमारी कहाँ पे, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई ऊपर। तो हम यहाँ जाएंगे 3 यूनिट इधर गए, 4 यूनिट इधर गए, 5 यूनिट इधर आ गए। तो ये जो फाइनल पोजीशन है, ये जो फाइनल पोजीशन है यहाँ पे, इस फाइनल पोजीशन का जो ओरिजिन से एंगल बन रहा है वो क्या कहलाएगा फाइनल यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ओरिजिन है 0,0,0 और 3, यहाँ 3 यूनिट चले, यहाँ 4 यूनिट चले, यहाँ 5 यूनिट आ गए, तो इसका जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे फाइनल यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे, अच्छा ये तो आ गया हमारा वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर। अब इस वेक्टर का मान लो मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का निकालेंगे तो आई का कोफिशिएंट क्या है 3, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और तीनों का स्क्वायर करके अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा वेक्टर ए का, क्या आ जाएगा 9 + 16 + 25, so this is equal to 50। magnitude of vector A equal to 50। now what do you mean by unit vector, so suppose this is a vector A, now we need to, what does unit vector represent, it represents the final direction, direction in the form of angle। so how will you determine the final, so suppose this is the final position 3 I 4 J 5 K, this is the final position, so what does this angle make by this final position, so unit vector having formula, that formula is, suppose we need to determine unit vector A, this formula is vector A upon mod of A, mod of A means magnitude, this represents the magnitude। so what does, for vector A 3i 4j 5k, what does this unit vector represent, so this unit vector is equal to vector upon mod A, so that is 3i cap 4j cap 5k cap upon under root 50, upon under root 50। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया आई कैप जे कैप क्या है, नुमाइंदे हैं,
जो हमें बता रहा है कि हमें एक्स एक्सिस में जाना है, वाई एक्सिस में जाना है और जेड एक्सिस में जाना है। तो ये पूरा हमारा ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अगर हम इसको और कन्वीनियंटली लिखें, और कन्वीनियंटली लिखें अगर इस चीज को और कन्वीनियंटली लिख दें, अगर हम इसको और कन्वीनियंटली, तो हम ए कैप वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, 3i 4j 4j एंड 5k कैप और अपॉन क्या हो गया 5√2। तो एंगल इट फॉर्म विद द एक्स एक्सिस 3/5√2, एंगल इट फॉर्म विद द y axis 5.5√2 and angle it formed with the k axis is 5.5√2। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फॉर अ गिवन वेक्टर a 3i कैप 4j कैप 3i कैप 4j कैप 5k कैप, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फाइंड फर्स्ट मैग्नीट्यूड आपने निकाल दी, सेकंड यूनिट वेक्टर a कैप आपने निकाल दिया, फिर एंगल इट फॉर्म विद जेड एक्सिस, तो क्या आ गया 5/5√2, कितना आ गया 1/√2, और एक इसके बराबर है cos थीटा इक्वल टू 1/√2 मीन्स 45 डिग्री मीन्स π/4, आपने इसको भी निकाल दी। So that's all for this vector. Till here we have completely understand the operation of vector operations. Suppose how will you add vector? Suppose this is a vector A. This portion is known as head. This portion is known as head, and this portion is known as tail. So how it is added? So head of one vector is so this is a vector A. This is a vector B. So tail of other vector is joined with the head of other. So this can be written as vector A plus vector B. यहाँ पे एक और वेक्टर आएगा वेक्टर C. So this finally vector from this point to this point can be written as vector A plus vector B plus vector C. Suppose this is a vector D. So this finally can be written as vector A plus vector B plus vector C plus vector D. Okay. So we can simply add algebraically vector A plus vector B vector D according to the direction, where head of one vector joined with the tail of other. So resultant vector will be vector A plus vector B. Now we added C. So here the head of vector A plus B joined with the tail of vector C. So resultant will be A plus B plus C. Now again A plus B plus C joined with the tail of head of this vector joined with the tail of this, so can be this. Subtraction, how will you carry out the subtraction? Subtraction में क्या होता है? Suppose this is a point, this is a vector A. Suppose in this point this is a vector A, this is a point, this is a vector B, this is a vector C, this is a vector D. So we can simply join this. Suppose this is a vector D, so we can write vector A. So कम्यूटेटिव लॉ, हम इसको शिफ्ट करके यहाँ चाहे तो वेक्टर डी, चाहे तो शिफ्ट करके यहाँ पर हम वेक्टर यहाँ पे क्या कर सकते हैं सी, ठीक, यहाँ पे चाहे तो शिफ्ट करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट निकालना है तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस कर लेंगे। तो जैसे ऐड होता है वैसे सब्ट्रैक्शन होता है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपको जूम क्लासेस में लाइव क्लासेस में इसको क्लियर कर देंगे सब्ट्रैक्शन। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आ सकता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रूफ फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So suppose this is a vector A and this is a vector B. So they having the resultant having the angle alpha. This is a parallelogram. So again we having the component that this is again. Don't go for the ideas of the book. Just stick to my concept. So what are the angle between A and B? Is angle theta. We draw a perpendicular. So we know very well from trigonometry. We know suppose this is the angle B, this is B, and this is the theta. So suppose you need to determine the x.
So we know what is the relationship between base and hypotenuse cos theta equal to x upon b. So x equal to b cos theta, and suppose this is y. So what is the relationship between perpendicular and hypotenuse? So sin theta can be y upon b. So y can be b sin theta. The same concept I am using here, and we can write this distance can be b sin theta, and this distance can be b cos theta. Distance can be b cos theta. So initially I have written vector is a combination of Pythagoras and trigonometry. So here I am just using the trigonometric concept. Now this is again so this again can be written as b sin theta. Now suppose this r is moved down. Suppose this is the r and this is angle alpha total. So suppose we have dropped this r to the base. Suppose this is the base is a. Suppose this base is x. So this is r. तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी r cos अल्फा. अगर इसको नीचे लाएं, अरे आप लोग समझिए भाई, r को नीचे लाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे r cos अल्फा लिख सकते हैं इस रीजन को, नीचे वाले को. तो हम अगर इसी को नीचे ला के अगर हमने लिख दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, r को अगर हम ऐसे लाएं या नीचे आएगा तो क्या लिख सकते हैं, r cos अल्फा की जो वैल्यू है वो a प्लस b cos थीटा के बराबर है. r cos अल्फा a प्लस ये वाला b cos थीटा के बराबर है. और इसी को अगर हम r को इस साइड ले जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, r sin अल्फा. क्यों, ये अल्फा है तो रिमेनिंग हमारा क्या है, ये इतना अल्फा है तो रिमेनिंग हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा. क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा. तो क्या हो जाएगा r sin अल्फा इक्वल टू b sin थीटा. ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. तो ये अल्फा है भाई, तो ये 90 माइनस अल्फा है तो हमारा ये r cos अल्फा हुआ तो बाकी क्या हो जाएगा r sin अल्फा. अरे भाई r cos अल्फा करोगे तो r cos 90 माइनस अल्फा ले जाओगे उधर तो क्या आ जाएगा r sin अल्फा आ जाएगा. चलो वो सब टेंशन नहीं लो, वो तो अपन को पता है परपेंडिकुलर पोर्शन r sin अल्फा हो जाता है और बेस वाला क्या हो जाता है r cos अल्फा. स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा. और यहाँ क्या होगा r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा. और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. तो b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा. अपन लिखो 2ab cos थीटा. अब वैल्यूज रखो, वेक्टर का सिंबल लगाना मैं भूल गया, ये सिंबल लगा देना, ठीक है. और सॉरी ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1. हमारा रिजल्टेंट का क्या आ गया a स्क्वायर वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ये अपना क्या आ गया रिजल्टेंट आ गया. इसी का अपन यूज करते हैं. जब नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, जब वेक्टर मान लो ये a दिया और ये वेक्टर b दिया और रिजल्टेंट निकालना है इसके बीच में क्या 90 डिग्री, तो अपना रिजल्टेंट क्या आ जाता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसको अपन पाइथागोरस, क्योंकि 2ab cos 90 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होगी तो 0 हो ही जाएगा. अपन लोग सीधे a स्क्वायर प्लस b. तो जब भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर a दिया है एक वेक्टर b दिया है, वो दोनों वेक्टर ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का डबल प्लस 2ab cos थीटा. कोई कहे tan अल्फा निकालो, tan अल्फा तो tan अल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.